Well, dear students, let us begin with the part 3 of the chapter. We are done with the introduction, and now we have to see that how is Aram going to ride the horse. So we know that, some half an hour later Murad had come back. 5 minutes later, sorry, he had returned, and he was dripping wet. Okay, so now the sun was coming up, because I told you that this boy Murad had come when it was dawn. Okay, early morning hours, very early, when the sun is just about to rise. So now the sun was rising, and Aram says, "Now it's my turn to ride," I said. My Murad got off the horse. "Ride," he said. I leaped to the back of the horse, and for a moment knew the most awful fear imaginable. See, Aram is just 9 years old and he doesn't know how to ride a horse. Okay, but still, because he is crazy for horses and he has been insisting for such a long time that I have to ride a horse और मुझे अकेले ही ride करना है, तो मुराद ने बोला ठीक है, fine, if you want to ride a horse, ride it. So what did he do? He leaped to the back of the horse, वो बैठ गया, and the moment he was right on the horse, he imagined the most awful fear. He felt it. इतना जोर से उसको डर लगा that he says that knew the most awful fear imaginable, because see, he has never ridden one before, and now he is doing it for the first time. So अब वो बैठ गया. अब वो जैसे ही बैठ गया, but the horse is not moving. The writer says the horse did not move. So Murad says, "Kick into his muscles," my cousin Murad said. "What are you waiting for?" तो मुराद ने बोला, अरे kick into his muscles. तो kick into his muscles मतलब बेटा, जब आप अपने heels से ऐसे you kick into the muscles of the horse, which is an indication for the horse to start trotting. And then he said कि don't sit, सिर्फ तुम्हारे बैठने से घोड़ा नहीं भागने लगेगा. You have to kick into his muscles, which happens to be an indication for the animal to start to run. And then he says, we've got to take him back before everybody in the world is up and about. और वो कहता है कि भाई जल्दी करो, because इसको वापस भी ले जाना है, इससे पहले सवेरा हो जाए, रोशनी हो जाए, and everybody is in the world is up and about, कि सब लोग उठ जाएं. So as the instructions came, Aram kicked into the muscles of the horse. Once again it reared. Reared मतलब it raised. उसने अपने आगे कैसे दो पैर उठाए, like over here in the picture. ठीक है, it raised. This is rearing. Okay, when he is raising his two legs up. So once again he reared and snorted. Snorted मतलब exhaling नाक से अपनी. Then it began to run. और वो हॉर्स भागा जोरों से. एंड एरम सेज, आई डिडंट नो व्हाट टू डू. उसको हॉर्स राइडिंग आती तो थी नहीं, तो वो बोलता है कि आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू. यस, एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ही हैड गॉन टू द इरिगेशन डिच when Murad was riding, but that is because Murad was able to control the horse. But यहाँ पे तो उसको horse control करना नहीं आता है, तो वो instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. तो बजाय कि घोड़ा fields को क्रॉस करता हुआ irrigation ditch की तरफ जाता, कंट्रोल तो था नहीं एरम का बिल्कुल भी अपने हॉर्स पे, तो वो कहाँ चला गया? इट रैन डाउन द रोड टू द विनयार्ड. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो व्हाट अ विनयार्ड इज. सो इट वेंट टू द विनयार्ड. और वो किसका विनयार्ड था? विनयार्ड ऑफ डिक्रन हैलबियन, वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स. एंड व्हाट आर दीज वाइन्स? Vines, I told you, they are basically plantations of grapes for the purpose of converting them into wines. तो वाइन्स क्या होती है बेटा? बेल जिसे बोलते हैं आप, है ना. तो अंगूर बेल पे होता है, तो वहीं पे जैसे वो ग्रेप वाइन्स थी, उनके ऊपर वो जंप करने लगा. द हॉर्स स्टार्टेड टू जंप ओवर देम, लीप ओवर द वाइन्स. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. और क्या हुआ? 7 वाइन्स के ऊपर से उसने जंप करा, और उसके बाद व्हाट हैपेंड? Aram
fell. Aram गिर गया यहाँ पे. Then it continued running. और क्या हुआ उसके बाद? The horse ran. वो तो अपना भागता हुआ घोड़ा भाग गया आगे. Aram गिर गया. Now cousin Murad comes, running from behind. So my cousin Murad came running down the road. भागता हुआ पीछे से मुराद आ रहा है. And then what happens? See, what does he say? He says that, just a minute. So he comes running down the road and नीचे वहां पे गिरा पड़ा है Aram. But then he says, I am not worried about you. I am not worried about you, he shouted. We've got to get that horse. और Aram के पास आकर के बोला, अरे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम तोड़ जाओ, तुम गिर गए हो, बट मुझे घोड़े की चिंता है. We have to get back the horse. Okay? And he said, you go this way and I'll go this way. और उन्होंने डिवाइड कर लिया. बोला तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ. और उसने Aram को इंस्ट्रक्शंस दिए कि if you come upon him, कि अगर वो तुम्हें कहीं नजर आए, बी काइंडली मतलब बी काइंड टू हिम. उसके ऊपर चिल्लाना मत है, उसके ऊपर कुछ फेंक के मत मारना या उसको और घबरा मत देना. जस्ट बी काइंड. एंड देन मुराद सेज दैट आई विल बी नियर. तो नाउ बोथ दीज बॉयज, सो लेट्स से वन वेंट इन दिस डायरेक्शन, द अदर वेंट इन दिस डायरेक्शन. दोनों जो थे अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए टू लुक फॉर दिस हॉर्स. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच. तो Aram continued towards the road, वो वहीं देखता रहा. और मुराद किधर चला गया? इरिगेशन डिच की तरफ चला गया to look for the horse. It took him half an hour to find the horse and bring him back. और पूरा आधा घंटा लगा मुराद को to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or ride him until tomorrow morning. अब सवेरा हो गया है, सब लोग जग गए हैं. तो Aram is asking कि अब हम क्या करेंगे? तो मुराद कहता है देखो दो ही तरीके हैं कि या तो हम इसको वापस कर दें जहां से ये आया है, और hide him until tomorrow morning. तो दो ऑप्शंस हैं कि एक तो you take him back और सेकंड you hide him. So ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 until tomorrow morning, कि कल सुबह तक इसको छुपाना पड़ेगा, फिर सुबह जहां से आया वहां इसको रिटर्न कर देंगे. He didn't sound worried. ये ही कौन है यहाँ पे? मुराद. I'm making an M over here, okay? He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. And Aram says कि मुराद को कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी बिल्कुल. और Aram कहता है कि मुझे पता था ये इसको वापस तो नहीं करने वाला है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको छुपाएगा. Not for a while at any rate, मतलब अभी कुछ टाइम तक तो ये हॉर्स वापस नहीं जा रहा है. Which means that Murad is going to hide the horse. So Aram asks, where will we hide him? I said. Then he says, I know a place, he said. How long did you steal the horse? I said. और Aram पूछता भी कितने टाइम से तुमने इस हॉर्स को चोरी किया हुआ है? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. And suddenly it dawned on me, मतलब suddenly Aram को ये realize हुआ कि मुराद ये morning rides काफी टाइम से ये चल रहा है इसका, कि डेली मॉर्निंग में उठना और राइड के लिए जाना. And he had come to Aram just today. मतलब कुछ टाइम से, for some time, Murad had been doing this, but only today he had come to Aram because उसको पता था कि how much I longed to ride. Long मतलब उसका कितना ज़्यादा desire था, कितनी उसकी इच्छा थी, कितना उसका मन था to ride a horse. Who said anything about stealing a horse? He said. तो मुराद ने बोला अरे ये हॉर्स चोरी किया, ये किसने कहा? Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? तो एरम ने कहा चलो ठीक है इसको छोड़ो, ये बताओ कि तुम कब से जो हो ये राइडिंग कर रहे हो, ये अर्ली मॉर्निंग राइडिंग ऑन दिस हॉर्स. तो मुराद ने बोला नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड. तो बोलता है आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. देन मुराद रिप्लाइज ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars.
all you know is that we started riding this morning. So Aram asked Murad कि भाई कब से तुम ये राइडिंग कर रहे हो? तो उसने कहा मैंने तो आज सुबह से शुरू करा है. तो उसने कहा नहीं तुम सच बोल रहे हो? तो बोला नहीं मैं सच बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट ये तुम्हारे लिए आंसर है कि अगर हम पकड़े जाते हैं और अगर कोई तुमसे पूछता है कि ये कब से चल रहा है, तो एरम हैज टू रिप्लाई कि ये आज से ही शुरू हुआ है. एंड देन ही सेज आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. Yes, that means one thing is clear that Murad is lying, but he doesn't want Aram to lie. All you know is that we started riding this morning. और कहता है Aram तुमको बस ये पता है और बस इतना ही तुम दिमाग लगाओ कि आज सुबह से ही ये राइडिंग जो है ये शुरू हुई है. Aram कहता है all right, I said. He walked the horse quietly to the barn. और वो हॉर्स को आराम से धीरे धीरे चलाते हुए कहाँ ले गए? टू अ बार्न. सो अ बार्न इज लाइक अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर, अ बिग ह्यूज स्ट्रक्चर विच इज यूज टू स्टोर योर ग्रेन्स और यू नो द क्रॉप. तो आई विल ऑल्सो सेंड यू अ पिक्चर ऑफ दिस. तो वो एक बार्न में ले गए उसको, और ये बार्न किसका था? ऑफ अ डिजर्टेड विनयार्ड. डिजर्टेड मतलब अबैंडेंड, विदाउट पीपल. एक ऐसी जगह जहां पे अब नो लॉन्गर पीपल आर वर्किंग. एंड वो क्या था? इट वॉज अ विनयार्ड. तो एक डिजर्टेड विनयार्ड था, मतलब वो एक ऐसा विनयार्ड था जहां पे ग्रेप प्लांटेशन अब नहीं हो रही थी. ओके, सो इट वॉज एन अबैंडेंड विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिटवजाइन. तो ये फिटवजाइन का विनयार्ड था और वहां पे अब कोई था नहीं, उसका ये बार्न था, बार्न खाली था. Both the boys, they take the horse to this barn. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. और वहाँ पे horse के खाने के लिए क्या था? Oats थे, oats you all know, and dry alfalfa. Now alfalfa is a flowering plant. So basically this plant is grown as a grazing crop. ये इसीलिए उगाया जाता है ताकि ये जानवरों को खिलाया जा सके. तो ये ड्राई अल्फाल्फा वहाँ था और उस बार्न में इन लोगों ने ये रख दिया और उस हॉर्स को वहाँ पे छोड़ दिया. सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स इज दैट दिस हॉर्स इज डेफिनेटली अ स्टोलन हॉर्स. मुराद खरीद के नहीं लाया है, बट वो स्टीलिंग को स्टीलिंग इसलिए नहीं कह रहे हैं बिकॉज दे लव द हॉर्स सो मच. वो उसको बेचने के लिए नहीं लाए हैं और अभी उसको वापस नहीं कर सकते जहां से भी लाए हैं क्योंकि सुबह हो गई है. तो अब वेयर हैव दे हिडन द हॉर्स? सो दिस इज द हाइडिंग प्लेस. हियर इट्स क्लियर नाउ. दिस इज द हाइडिंग प्लेस. Which is the hiding place? The barn of a deserted vineyard which belonged to Fitwajan. ठीक है, ये नाम है उस इंसान का जिसका वो बार्न था. And they began walking home. अब देखो दोनों कजिन्स में क्या डिस्कशन हो रहा है. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. मुराद बोलता है ये इतना आसान नहीं था इस हॉर्स को अच्छे से बिहेव कर पाना या इसको करवाना. ही वॉज अ टफ हॉर्स, ही सेज. ओके, आई एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. तो कहता है पहले पहले जब मुझे हॉर्स मिला ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा था. एंड इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू. Horses understand me. And on this note, I want you to underline this. ये एक catch phrase आ रहा है. I am highlighting it for you. It's a catch phrase. Catch phrase क्या होता है मैं पहले ही explain कर चुकी हूँ. And if you want, I can help you recall it. Uncle Kostrov का catch phrase क्या था? It's no harm, pay no attention to it. I hope you remember this. Don't forget it. So, Murad's catchphrase is, I have a way with the horse. Okay? And I can get it to want to do anything I want to do it. Or further he adds, horses
अंडरस्टैंड मी. आगे वो एडम से कहता है कि हॉर्सेस जो हैं वो मुझे समझते हैं और मैं हॉर्सेस को समझता हूँ और मेरा हॉर्सेस के साथ आई हैव अ ओन very special way of dealing with horses. So, how do you do it? I said. So, Aram is asking, please don't get confused. Aram is asking Murad, how do you do it? I said. तो वो बोलता है, I have an understanding with a horse, he said. Aram says, yes, but what sort of an understanding? कि ऐसी कैसी understanding है? So, Murad replies, a simple and honest one. कहता है बहुत ही simple और honest understanding है मेरी और horses के बीच में. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अब now see, Adam is a very little boy of 9 years old. जिद से वो हॉर्स राइडिंग के लिए तो गया, बट हुआ क्या, 7 माइल्स लीप करी हॉर्स ने और एडम घोड़े से गिर गया. सो ही सेज, आई विश मेरी भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो पाती जैसी तुम्हारी है. So Murad replies, you are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. तो कहता है अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 years के हो जाओगे तो तुमको भी आ जाएगा how to do it. So this was the first adventurous riding, morning that they had with this beautiful white horse. Now Adam says, I went home and ate a hearty breakfast. Adam घर पहुंच गया और उसने बहुत बढ़िया से breakfast करा. And here I would like to tell my students, the word is breakfast. Breakfast नहीं बोलते हैं इसको, okay? So we write BREAKFAST, but we call it or we pronounce it as breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. अब uncle Khosrow के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, okay? A very irritable, short-tempered man. So he came to the house of Aram for coffee and cigarettes. He sat in the parlor. Now a parlor over here is a sitting room, a living area, a drawing room. ये beauty parlor वाला parlor नहीं है. This is actually in the British English, it is the sitting area or the living area जहाँ पे सब बैठ करके बातचीत करते हैं, या बहुत simple English में, या जैसे हम लोग अपने घर में drawing room बोलते हैं. He sat in the parlor, who? Uncle Khosrow. Sipping and smoking. Sipping coffee and smoking cigarette and remembering the old country. और वो अपनी old country जहाँ से ये लोग आए हैं, because I told you कि ये आर्मेनियन ट्राइब जो थी, एंड पर्टिकुलरली दिस गारोग्लेनियन फैमिली, ये परमानेंट सेटलर्स नहीं थे. दे वर ऑन मूव. इनका परमानेंट कुछ भी नहीं था, तो ये लोग मूव करते रहते थे. सो ही इज रिमेम्बरिंग हिज ओल्ड कंट्री. और उसी वक्त देन अनदर विजिटर अराइव्ड, एंड दिस मैन इज अ मैन बाय द नेम ऑफ जॉन बायरो. आई एम हाईलाइटिंग इट. ये एक नई एंट्री हुई है. सो ही इज अ फार्मर, एंड ये भी उसी वक्त आया इनके घर, एंड ही इज एन असाइरियन. ही इज फ्रॉम असाइरिया, और हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. अब ही इज फ्रॉम असाइरिया, आर्मेनिया में वो है. फॉर सम रीजंस उसको भी अपनी जगह छोड़ के आर्मेनिया में सेटल होना पड़ा है. अब ही डजंट हैव अ फैमिली शायद, तो आउट ऑफ लोनलीनेस बात तो करनी है ना किसी से, तो उसको आउट ऑफ हिज लोनलीनेस ही लर्न टू स्पीक Armenian because they are all in Armenia. My mother brought the lonely visitor. Who is this lonely visitor? John Bairo. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said. तो अंकल कॉस्ट्रॉफ के साथ जॉन बायरो भी बैठे हैं, तो वो भी कॉफ़ी पी रहा है, वो भी सिगरेट पी रहा है, और बोलते बोलते बड़ी भारी दिल के साथ, साइंग सैडली, देखो वहाँ पे देयर इज अ वर्ड सैडली, विद अ वेरी हैवी हार्ट ही सेज, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. और देखो क्या पता चलता है, जॉन बायरो कहता है कि मेरा वाइट हॉर्स जो कब चोरी हो गया था, लास्ट मंथ. दैट मीन्स मुराद के पास ये हॉर्स कब से है, फ्रॉम द पास्ट 1 month. और ये हॉर्स डेफिनेटली जॉन बायरो का ही हॉर्स है.
तो वो कहता है कि भाई पिछले 1 महीने से मेरा जो हॉर्स है इट इज स्टोलन, राइट, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब इस बात पे अंकल कॉसरोव पूरे गुस्से में, हिज टेम्पर, यू नो, ही रिएक्शन, ही सेज, माय अंकल कॉसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स। तो उन्होंने अपना वही कैच फ्रेज बोला कि इट्स नो हार्म। तो बोले अरे तो क्या हो गया, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। तो अंकल कॉसरोव गुस्से में बोलते हैं अरे यहाँ हमसे हमारा होमलैंड छूट गया, हम जहाँ रहते थे वो जगह छूट गई, तो मैं घोड़े के ऊपर रो रहे हो, यू आर क्राइंग ओवर अ हॉर्स। सो जॉन बायरो सेज दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से। जॉन बायरो सेड बट व्हाट ऑफ माई सरे। अब सरे क्या होता है बेटा, अ सरे इज अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज, जिसे आप बग्गी भी बोलते हैं, ठीक है, या हम बिल्कुल अपनी नेटिव हिंदी में तांगा भी बोलते हैं। तो तांगा होता है ना, उसे कौन चलाता है, उसे घोड़ा ही खींचता है, ठीक है। तो जॉन बायरो बोलता है अंकल कॉसरोव से कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप लोग तो यू पीपल लिव इन द सिटी, आप तो शहर में रहने वाले हैं। वो बोलता है बट जॉन बायरो इज अ फार्मर। तो बोलता है बट व्हाट ऑफ माई सरी, मेरे कैरेज का क्या होगा, अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज। तो कहता है बट व्हाट ऑफ माई सरी, व्हाट ऑफ माई बगी। सो ही सेज व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। अब सरे कोई जॉन बायरो तो खींचेगा नहीं, उसे तो खींचेगा घोड़ा ही, और वो हॉर्स किसका था, वो हॉर्स था जॉन बायरो का। और अब वो हॉर्स किसके पास है, मुराद के पास है। कितने टाइम से, फ्रॉम द पास्ट 1 month। सो ही इज रियली सैड, हु, जॉन बायरो इज रियली सैड, क्योंकि उसका जो हॉर्स था वो किसी ने चुरा लिया है, 1 महीना हो गया है, उसको पता नहीं है। एज अ रिजल्ट उसका सरे किसी काम का नहीं है। और उतने ही गुस्से में अंकल कॉसरोव कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट। माय अंकल कॉसरोव रोर्ड। सो रोर्ड इज दहाड़ना, इतनी भारी सी आवाज में। तो जॉन बायरो कहता है आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो बोलता है कि मैं 10 किलोमीटर तकरीबन पैदल चल के आ रहा हूं। तो अंकल कॉसरोव कैसे, यू हैव लेग्स, माई अंकल कॉसरोव शाउटेड। सो एज यूजुअल अंकल कॉसरोव इज अ मैन who does not want to understand anybody's situation, anybody's problem। उनको तो बस अपने टेम्पर में रहना है, और वो बस जोर से चिल्ला के बोले अरे तो क्या हो गया, तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया, बिग डील, वी लॉस्ट आवर होमलैंड। तो बोलता माई सरे इज विदाउट अ हॉर्स, आई हैड टू वॉक 10 miles। तो कहता सो क्या हो गया, तो क्या हो गया अगर तुम 10 किलोमीटर चल के आए, पैर हैं तुम्हारे पास एंड लेग्स यू हैव टू वॉक। सो दिस इज अ वेरी टिपिकल रिएक्शन ऑफ अंकल कॉसरोव। और यहाँ वापस से उनका हमको कैच फ्रेज देखने को मिलता है कि इट्स नो हार्म, ओके, एंड पे नो अटेंशन टू इट। सो दिस इज अ कैच फ्रेज। और उसी तरीके से यहाँ शायद ये मुराद का कैच फ्रेज है। सो इफ बोथ ऑफ दीज मेन, बोथ मुराद और इधर अंकल कॉसरोव, दे हैव देयर कैच फ्रेजेस, दैट इज वाई द ऑथर सेज that Uncle Khosrow was Murad's father in his spirit, in his actions, in his activities, in his being so crazy. So उस तरीके से देखो तो मुराद बिल्कुल अंकल कॉसरोव की तरह है। हालांकि वो उनका बेटा नहीं है, वो किसका बेटा है, डू यू रिमेंबर, ही इज द सन ऑफ जोराब। और अंकल कॉसरोव का बेटा कौन है, उनका बेटा है एरिक। और ये सब यहाँ पे हमने मार्क किया था, here on page number, what is the page, it's page number 3, yeah, page number 3 पे जो पैराग्राफ है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मुराद्स फादर was जोराब and Eric is the son of Uncle Khosrow। तो Uncle Khosrow was a very crazy man और मुराद्स फादर जोराब was practical and nothing else, very practical and a very simple man। उनके साथ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। तो यहाँ जॉन बायरो के आने से वी कम टू नो किसकी पोल खुली, किसका सीक्रेट आउट हुआ, मुराद का। एंड एरम गेट्स टू नो दैट दिस हॉर्स हैज बीन विद मुराद फॉर 1 month और 10 किलोमीटर वो चल के आया है। एंड वी कम टू द नेक्स्ट पेज।
So John Byro says, my left leg pains me, the farmer said. Who is this farmer? John Byro. JB में लिख रही हूँ आप, ठीक है. Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. तो अंकल कॉस्ट्रो फिर जोर से बोले, अरे पे अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो, दर्द हो रहा है, होने दो, लीव इट. देन ही सेज, द हॉर्स कॉस्ट मी $60. जॉन बायरो बोलता, भाई $60 का घोड़ा था. एंड अंकल कॉस्ट्रो सेज, आई स्पिट ऑन मनी, मैं थूकता हूं पैसे पे. माय अंकल कॉस्ट्रो सेड. ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. और ये कहते हुए वो उठे अंकल कॉस्ट्रो और निकले वहां रूम से बाहर, घर से बाहर निकले, और स्लैमिंग द, इतनी जोर से दरवाजा जो है उन्होंने पीछे, मतलब इतनी जोर से क्योंकि खोला, पीछे ढंग से उसको बंद नहीं करा, तो द स्क्रीन डोर स्लैम्ड, बहुत जोर से दरवाजा बंद हुआ. तो दिस शोज अस दैट अंकल खॉस्ट्रोव इज अ मैन विद अ वेरी वेरी हाई टेम्पर. ही इज वेरी वेरी इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. तो देर आर फ्यू वर्ड्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर अंकल खॉस्ट्रोव. ही इज इरिटेबल, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड. और फिर एडम की मदर जो पीछे थी वो जॉन बायरो से बोलती हैं, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड. इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. और वो बोलती हैं कि भाई वैसे देखो, शी इज काइंड ऑफ टॉकिंग टू जॉन बायरो, और बहुत बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से जॉन बायरो को समझाती हैं, कहती हैं अरे डोंट माइंड, he has a habit of shouting, but he has a gentle heart. वो दिल के बुरे नहीं हैं, she said. It is simply, so she is justifying the actions of Uncle Khosrow. बोल रही, it is simply that he is homesick, कि he misses his homeland. Okay, so these Garoglanian people, they are on a move and they do not stick to a particular place. और इसलिए वो बोलती है कि he misses his homeland and he is such a large man. तो उनके एक्शंस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा दे आर सो लाउड, एंड ही इज़ अ लार्ज मैन, सो ही डजंट नो व्हाट टू डू. सो बेसिकली एडम्स मदर is trying to pacify John Byro and is trying to say कि don't mind, please don't feel bad, because Khosrow has this habit of, he has his nature, उनका तो नेचर ही ऐसा है, but otherwise from his heart he is a good man, right? So today, my dear students, we will just do it till here, till large man, and the section 4 of the story will begin from here. So I hope you have understood what we studied today. So if we have to just summarize it quickly, I'm sorry. So here, Murad ने कैसा horse riding किया, we know how Aram did it. Then they had to find the horse. उसके बाद where is the hiding place of the horse? What are they feeding the horse? Oats and alfalfa. ठीक? And then we come to know the catchphrase of Murad, and he says, I have a thing with horses. I have an understanding with the horse. Okay? So इसको भी यहाँ पे highlight कर लो कि मुराद क्या बोलता है. तो वो बोलता है क्या कि I have an understanding with the horse. And he says that I know, and he's also telling Aram कि इस horse को deal करना इतना आसान नहीं था. He was very wild, he was very dangerous. But वो तो क्योंकि मुझे आता है, I have a way with horses, I have an understanding with horses, so I can get them to do whatever I want them to do. ठीक? And then we come to know a new entry comes in, a new character comes in, and he is John Byro. And John Byro is a farmer. And we come to know कि ये जो हॉर्स है ये पिछले 1 महीने से चोरी हुआ है, और जिसकी वजह से जॉन बायरो इज वेरी सैड and he is in lot of pain because his surrey is not mobile, surrey नहीं उनका यूज हो पा रहा है, and he has to walk everywhere. अगर उनके पास उनका घोड़ा होता तो वो उसको अपने कैरेज में लगा लेते तो उनको चलना नहीं पड़ता, because that would have been his means of transportation from one place to another. So he has walked 10 miles, और इधर हमको पता लगता है कि the horse had costed John Byro how many dollars? $60. And then we again the writer tells us कि कितना irritable हैं अंकल कॉसरोव, कितना ज़्यादा जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है. So impatient he is कि एक तरफ तो
जॉन बायरो इज टेलिंग हिम सच अ पेनफुल थिंग. तो नॉर्मली किसी इंसान को आप बताएंगे कि अरे भाई मेरा ये चोरी हो गया, तो आप उसके साथ सिंपथाइज करते हैं या उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उसको डांटने नहीं लगते हैं कह रहे तो क्या हो गया, तो क्या हो गया. बट दैट इज सो टिपिकल ऑफ अंकल कॉसरोव. सो हियर माय डियर students, we will wrap it up in this session. In the next session, we will begin from here, the farmer, and apparently we will wind up the chapter in the next session. Today, I want you to revise all of it. I will be sending you images of what is a barn, how does alfalfa look like, ठीक है. और आप लोग try and find out what are irrigation ditches, how do they look like, and of course, we will try to understand the characters of Uncle Khosrow and Murad. So on this note, I would like to wrap up today's session. So I hope you are able to understand and connect with these two young boys, Aram and Murad, in this lovely chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. Stay safe, stay indoors, be good, my dear students, don't trouble your parents, and complete your work, and you know how to get to me in case there is any problem. Have a nice day.